Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue this chapter Emperors on Ice, and this will be the third part. Today, we are going to continue from where we have left, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था previous वीडियो में वहाँ से आगे का explanation I'll be doing. Now, before that we start, I would like to show you some interesting part of this video. We are going to see हम लोग जो है एक hold on just 1 second. We are going to see an animation of this chapter. So are you guys ready? I hope you will like it. So just wait 1 second. I'm just going to play that animation for you. They built a rock igloo to serve as a field laboratory to study the penguins. It was from here that they made their way onto the sea ice and became the first men to witness the midwinter breeding of the emperor penguin. Emperors may be easy to like, but they aren't quite so easy to find, let alone study. They mostly breed in inaccessible places and in the darkness of winter, so their colonies haven't been easy to locate. The explorers reached the emperor penguin rookery by climbing the huge walls of ice that surrounded it, and they snatched 5 eggs. Cherry dropped 2 as they struggled back to the igloo. But this was not the end of their misery. They then became trapped in a particularly violent blizzard. Then, as they reached their target, their tent blew away first and the igloo roof followed. For 2 days they remained bundled in their sleeping bags, clinging to life beneath a growing snowdrift, without food or cover until there was a lull in the blizzard and Bowers found their tent. Our lives had been taken away and given back to us, Cherry wrote. Incredible but true, on the 1st of August 1911, the trio finally staggered back to base camp, their faces blistered and scarred, clutching their precious load of 3 eggs. They had spent 6 weeks in the Antarctic winter traveling from Cape Evans to Cape Crozier to gather rare emperor penguin eggs from their natural habitat. So guys, what you saw was an amazing animation, isn't it? कितने अच्छे से उस एनिमेशन में जो है चीज़ों को दिखाया गया, कैसे 3 लोग जो एक्सपीडिशन पे निकले थे, द 3 ब्रिटिश मैन, हुज नेम वर विल्सन, बर्डी बॉबर्स एंड एब्सले चेरी. वो तीनों लोग कैसे बेस कैंप से केप इवेंट्स होते हुए वो केप क्रोजी के लिए पहुंचते और वहाँ पे वो सारी जो एम्पर पेंगुइन्स थी उसकी खोज में पहुंचते हैं, वहाँ से एग्स को लेते हैं और फिर वापस आते टाइम उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हाउएवर दे आर कमिंग बैक. उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेली. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड line by line and explanation will be done as we are having it in every video. So let me explain now. The 3 British men, Wilson, Birdie Bowers, and Alpsley Cherry Garrard, set out from their base camp at Cape Evans at midday on 27th June 1911. 3 ब्रिटिशमैन जो थे वो अपने बेस कैंप केप इवेंस से 27 जून को मिड डे में, मतलब आप मान सकते हैं कि दोपहर के टाइम में 1911 को निकले थे. They walked out with 2 sleighs of food and equipments, left base camp, and cruised into a freezing, pitch black, gale blattered nightmare Cape Crozier that was about 20 kilometers away. तीनों वहाँ से पैदल चलते हुए साथ में अपना फूड और इक्विपमेंट्स स्लेज के ऊपर उन्होंने लोड किया और वो उसको खींचते हुए उस ठंड के मौसम में बर्फ़ के ऊपर. हालांकि वहाँ पे इतना अंधेरा था. नाउ यू कैन सी हियर पिच ब्लैक. पिच ब्लैक मीन्स घनघोर अंधेरा, राइट. एंड वहाँ पे जो हवाएं, जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो एक नाइटमेयर जैसा महसूस हो रहा था. जैसे आपको
जो बहुत परेशान करता हो, दैट इज़ कॉल्ड नाइटमेयर। तो इस तरीके से परेशान मतलब कर रहा था वो पूरा रास्ता उसको। एंड दे लेफ्ट फॉर द केप क्रोजियर, क्योंकि केप क्रोजियर जो है वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो है उनको एम्परर रुकरी मिलने वाला है। एम्परर रुकरी में जाकर के वो एम्परर पेंगुइन जो एम्परर है उसके एग्स को वो ढूंढेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ दिस केप क्रोजियर वाज 120 किलोमीटर अवे, 120 किलोमीटर जो उसका बेस कैंप था वहाँ से केप इवेंस से 120 किलोमीटर अवे था, 120 किलोमीटर की दूरी थी। The average temperature as they plodded on was a minus 60 degree Fahrenheit, and it fell as low as 77 minus 77 degree Fahrenheit. जो वहाँ का औसत तापमान था वो करीब 60 डिग्री आई मीन माइनस 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था। जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ते गए तापमान गिरता गया और इट फॉलन डाउन अबाउट -17 डिग्री मोर। तो कहने का मतलब ये है कि ठंड जो है और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। द थिक क्लोइंग स्नो meant they could only pull one sled at a time। जैसे जैसे वहाँ पे ठंड बढ़ते गई वहाँ पे क्लोइंग का मतलब होता है वर्ड मीनिंग यू कैन सी हियर। क्लोइंग मीन्स कैन सी क्लोइंग हियर अनोइंग बिकॉज देयर इज़ टू मच स्नो। आई मीन काफ़ी अनवायड हो रहे थे वो लोग खींचने में, क्योंकि स्लेज को खींच के ले जाना पड़ रहा था। तो जैसे जैसे बर्फ़ की चादर मोटी होती गई तो उनको अनवायरमेंट होने लगा। एक व्यक्ति जो है आई मीन उसको अकेला कितनी दूर तक खींच सकता था, तो अनवायरमेंट होने लगा। फिर दे हैव डिसाइडेड कि एक व्यक्ति एक बार में कुछ किलोमीटर्स तक खींचेगा, फिर उसका दूसरा व्यक्ति खींचेगा और उसके बाद तीसरा व्यक्ति खींचेगा। सो दे हैड टू प्रोसीड इन अ रिले। अपने रिले आपने स्पोर्ट्स डे पे देखा होगा जिसमें 3-4 लोग होते हैं। एक चक्कर काटने के बाद वो रिले जो है दूसरे पार्टनर के हाथ में थमाते हैं और फिर वो आगे की जो दौड़ है वो कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद थर्ड पार्टनर को देते हैं, ऐसे करके। तो 3 व्यक्ति थे, तीनों एक एक करके जो है उस स्लेज को खींचने लगे। गोइंग वन गोइंग ओनली 1 माइल फॉर एवरी 3 दे वॉकड। एक एक मील वो चलते थे और जो व्यक्ति चलता था खींचता जाता था। इट वॉज पिच ब्लैक, काफ़ी घनघोर अंधेरा था। एंड 3 हैड टू नेविगेट बाई कैंडल लाइट एंड स्टार्स। और उन तीनों के पास आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैंडल लाइट था और जो स्टार्स की जो लाइट थी, स्टार की जो रोशनी थी वो उनको मददगार साबित हो रही थी उनके लिए। दे टुक टर्न्स फॉलिंग इनटू crevices। In the words of Alpsle Gerard, the moon was showing ghastly ragged mountainous edge above us in the fog, and as we rose, we found that we were on a pressure ridge. Now, in this para, let me hold on just 1 second. Let me explain you the word meaning. Here, crevasses means darare. जैसे you might have seen in जो ज़मीन पे दरार होती है बीच में जो और ज़मीन फट जाता है उसको दरारें बोलती है, तो वैसे ही दरारें जो है वहाँ पे देखने को मिल रही थी। देन यू कैन से रैग्ड मीन्स टुकड़े टुकड़े। एंड घैस्टली वॉज भयंकर, काफ़ी भयंकर दरार वहाँ पे देखने को मिला। एंड अदर्स लाइक रिज का मतलब होता है चोटी। रिज इज हियर मीन्स चोटी। And then you can say creeks, Charmarana, Gron, you can say Karahana, groaning. You might have seen any dog when they are groaning because they are having in pain, they are feeling pain. Right, now let me explain. So in this para, द नरेटर सेज कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वहाँ पे दरारें थी जिस सरफेस पे वो चल रहे थे। और अगर चेरी के शब्दों में बोले तो मून जो है काफ़ी भयंकर दिख रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में दिख रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिस चोटी पे चढ़ रहे हैं वो चरमरा रही है और
आई मीन लाइक दे वर जस्ट, वहाँ पे धुंध भी काफ़ी ज़्यादा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चोटी पे चढ़ाई कर रहा है। वी स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट वन अनदर एंड देन बैंग राइट अंडर आवर feet. More banks and creaks and groan, for the ice was moving and splitting like glass. The cracks went off all around us, and some of them ran along of hundred of yards. Now in this para, the narrator says कि वो कुछ देर के लिए वहाँ पे रुके, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने एक दूसरे को ढांढस बंधवाया और लाइक देवर लाइक कि अब क्या करें, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, दरारें बढ़ती जा रही है और आगे जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद वहाँ पे जिस तेज़ी से आइस जो है क्रैक करके टूटने लगा, जैसे ग्लास के टूटने के बाद जो आवाज़ें होती है उस तरीके से ग्लास जिस प्रकार से टूटता है वैसे आइस भी टूटने लगा। क्रैक जो है चारों तरफ उनके दिखने लगा अब, और वो एक दूसरे को पकड़ के हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें से एक क्रैक मतलब काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहा था और उसमें वो लोग वहाँ से फिसल के करीब 100 यार्ड्स नीचे तक आ गए। There was pus in their blistered frostbite. Their teeth cracked and they feared breaking bones. The impact on the men was horrific. As Cherry's biographer, Sarah Wheeler notes, it took him 45 minutes to chip his way into his sleeping bag each night, as during the day is froze flat like a slab of tombstone granite. Let me tell you the word meaning. ब्लिस्टर्ड मतलब ऐसे आपने छाला जो सुना होगा, छाला होता है। फ्रॉस्ट बाइट मतलब दांत जो है आपका बिल्कुल ठंड के कारण वो यू कैन से कि उसको हिंदी में शीत दंस बोलते हैं। तो ठंड के कारण दांत जो है आपका बिल्कुल कटकटाने लगता है। तो ये सारी चीज़ इन दिस पैरा द नरेटर इज सेइंग कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था। पस इज़ लाइक व्हेन यू हैव एनी वुंड, तो उसमें से जो पस निकलता है, तो इस तरीके का फ्रेज यूज़ किया गया है नरेटर के थ्रू। ये फ्रेज जो है यूज़ किया गया है नरेटर के थ्रू उस पेन को बतलाने के लिए कि जब वो लोग जा रहे थे और यहाँ पे यू कैन सी हियर दे फियर्ड ब्रेकिंग बोन्स। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियाँ जो है अब चटक रही है, टूट रही है, उनके दांत जो है उससे पस निकल रहा है। और लाइक पूरा वहाँ जो माजरा था, मीन उन लोगों के चेहरे पे देखने को मिल रहा था, वो काफ़ी डरावना था। और चेरी का जो बायोग्राफर है जिसने चेरी के बारे में लिखा था, जिसका नाम सारा व्हीलर है, ये सारी चीज़ें उसके चेरी के बायोग्राफी में लिखा गया था सारा व्हीलर के द्वारा। उसने चेरी ने सारा व्हीलर को बताया था। साथ ही साथ वो यह भी बताती है कि 45 मिनट्स तक उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हर रात जो है वो अपने स्लीपिंग बैग में घुस करके, जैसा कि आप लोगों ने एनिमेशन में भी देखा कि दे यूज टू स्लिप इन दैट स्लीपिंग बैग, उस स्लीपिंग बैग में सोते थे, जिससे कि उनको ठंड से बचने में काफ़ी मदद मिलती थी। और दिन के टाइम वो बिल्कुल एक ऐसे फ्लैट स्लैब, टॉम्बस्टोन इज़ लाइक यू कैन से, टॉम्बस्टोन एक एक ऐसा स्टोन होता है जिसमें कि जिसको कि मूर्ति कार्व करके मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो ऐसे बिल्कुल ठंड के कारण अकड़ा हुआ जो एक पोस्चर बनता है, उस पोस्चर में ये लोग मतलब हो जाते थे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट पैरा। At Cape Crozier, they built a rock igloo to serve as a field laboratory to study the penguins. जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा कि उन्होंने इग्लू बनाया था। इग्लू, यू नो, एवरीवन नोज इग्लू, व्हाट इज़ दैट। तो केप क्रोजियर में जैसे ही वो पहुंचे तो वहाँ पे इग्लू उन्होंने बनाया और उस इग्लू में जो है उन्होंने एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया ताकि वहाँ पे बैठ करके जो है मतलब पेंगुइन्स के बारे में स्टडी किया जाए। इट वाज फ्रॉम हियर दैट दे made their way on to the sea ice and became the first man to witness the midwinter breeding of empress penguin. और ये तीनों लोग जो है आप कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने इस बात का मतलब विटनेस किया
कि मिड विंटर में एम्परस पेंगुइन जो है कैसे अपने एग्स को ले करते हैं, एग्स को वहाँ पे देते हैं, अंडा देते हैं. नाउ एम्परस मे बी इजी टू लाइक बट दे आर नॉट क्वाइट इजी टू फाइंड. एम्परस देखने में हो सकता है, पढ़ने में काफ़ी आसान हो, आप उसको पसंद करते हो, लेकिन जब उनको खोजने की बारी आती है, जब उनको ढूंढने की बारी आती है, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके बारे में स्टडी करने से पता चला. दे मोस्टली ब्रीड इन एक्सेसिबल प्लेसेस, क्योंकि वो ऐसे जगहों पे मतलब ब्रीड करते हैं जो कि इंसान की पहुंच से काफ़ी दूर होता है. एंड इन द डार्कनेस ऑफ द विंटर, और वो मतलब वैसे जगह पे ब्रीड करते हैं जो काफ़ी मीन डार्कनेस भरा होता है, विंटर का टाइम होता है और विंट्री प्लेस होता है, लाइक अंटार्कटिक. सो देयर कॉलोनीज हैव नॉट बिन इजी टू लोकेट. और इसके कारण से किसी भी इंसान को जो है उसका कॉलोनी, वो जिस जगह पे रहते थे, जिसको कि हम पेंगुइन रुकरी बोलते हैं, एम्प्रस रुकरी बोलते हैं, उसको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता था. इतनी आसानी से उसको आप लोकेट नहीं कर पा सकते थे. The explorers reached the emperor penguin rookery by climbing the huge walls of ice that surrounded it and they snatched 5 eggs. आप लोगों ने देखा कि कैसे एक्सप्लोरर जो ये 3 लोग थे वो एम्प्रर पेंगुइन के रुकरी तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी चढ़ाई उन्होंने चढ़ी. और वहाँ पे पहुँचने के बाद जब वो पहुँचे तो वहाँ पे उनको 5 एग्स मिला. चेरी ड्रॉप्ड 2, वो पांचों एग को उन्होंने इकट्ठा किया, अपने पास लिया, लेकिन चेरी से गलती हुई और 2 एग्स जो है वहाँ पे टूट गया, क्योंकि वापस आने टाइम उनको स्ट्रगल करना पड़ा ठंड के कारण, और इसके कारण जो है एग्स टूट गए जब तक वो इग्लू में वापस आते. बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द माइजरी, देयर माइजरी. दे देन बिकेम ट्रैप्ड इन पार्टिकुलर वायलेंट ब्लिजार्ड. लेकिन यहाँ पे उनके दुखों का अंत, यहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स का अंत नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है काफ़ी तेज़ लहर कह सकते हैं, ठंडी लहर जो है, ठंडी तेज़ हवा वहाँ पे चलने लगी. यू कैन सी इन द एनिमेशन वंस अगेन इफ़ यू वांट, गो बैक टू द एनिमेशन एंड यू कैन सी. इसके कारण से जो है उनको और भी प्रॉब्लम होने लगा, काफ़ी वायलेंट ब्लिजार्ड वहाँ पे चलने लगा, जिसके कारण से उनको और भी दिक्कतें पैदा होने लगी. Then, as they reached their target, their tent blew away first and igloo roof followed. और फिर उसके बाद जब वो अपने इग्लू के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना टेंट लगाया था इग्लू के बाहर, वो उस तेज शीत लहर के कारण उड़ गया, और उसके बाद इग्लू का ऊपर का हिस्सा भी जो है वो उस तेज हवा में, तेज ब्लो में उड़ गया. For 2 days they remained bundled in their sleeping bags, clinging to life beneath a growing snowdrift, without food or cover until there was a lull in the blizzard and Bobus found their tent. और करीब करीब 2 दिन तक वो लोग अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर में बंडल की तरह बंद होकर के ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि वो अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. उनको मालूम था अगर वो बाहर रहेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी. और जैसे ही मतलब थोड़ा, बट रिमेंबर कि वो 2 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, उसी स्लीपिंग बैग के अंदर में वो सोते रहे. और जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक हुआ, थोड़ी सी मतलब शांत हुई मौसम, उसके बाद जो है वो अपने टेंट के पास में वापस जा कर के ढूंढने लगे टेंट को, और उनको टेंट मिला. आर लाइव्स हैड बिन टेकन अवे एंड गिवन बैक टू अस, चेरी रोड. बाद में चेरी अपने उसमें लिखती है डायरी में कि हमारा ज़िंदगी जो है एक तरीके से ले लिया गया था, बट बाद में उसको वापस दे दिया गया. Incredible but true, on 1st August 1911, the trio finally staggered back to base camp, their faces blistered and scared, clutching their precious load of 3 eggs. फिर उसके बाद ये जो है उनके लिए काफ़ी मतलब अविश्वसनीय चीज़ था, लेकिन यह सत्य था कि वो 1 अगस्त 1911 को ये तीनों लोग जो है अपने बेस कैंप पे वापस आ जाते हैं. लेकिन जिस तरीके का उन्होंने परेशानी झेला था, ब्लिस्टर झेला था, उसने इन तीनों को काफ़ी डरा दिया था. लेकिन जब ये वापस आए तो उनके पास में जो है काफ़ी कीमती चीज़ उनके हाथ में था, और वो 3 eggs ऑफ एम्परर पेंगुइन अपने साथ में वापस लेके आए थे.
They had spent 6 weeks in the Antarctic winter, traveling from Cape Evans to Cape Crozier to gather rare emperor penguins eggs from their natural habitats. उन्होंने करीब करीब 6 हफ्ते अंटार्कटिक विंटर में जो है ट्रैवल किया और ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय था। केप इवेंस से लेके केप क्रोजियर का जो रास्ता था काफ़ी मुश्किलों भरा था, उसमें काफ़ी डेंजर उनको मिला और डेंजर का सामना उन्होंने किया। लेकिन ये उनके हिम्मत की दाद देने वाली बात थी कि उन्होंने जो काफ़ी रेयर पेंगुइन एग्स था, एम्परर पेंगुइन एग्स था, वो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स, जो प्राकृतिक जो स्थान होता है जहाँ पे वो अपने एग्स को ले करते हैं, वहाँ से उनको ये 3 रेयर एग्स मिले। Their frozen cloths had to be cut from their bodies. Cherry's teeth chattered so violently uh, that they shattered, while Bilson was blinded in one eye. Cherry looked about 30 years older than he had when he had set off his cadaverous face, scared and corrugated, nose dark, eyes dull, and hands white and wrinkled. His tonsils were falling off and his fingers were useless, wrote Sarah Wheeler, but they had been successful. Now, let me tell you the word meaning first. Here, the first is cadaverous. Cadaverous means, that means very pale and sick. जो मतलब चेहरा काफ़ी पीला पड़ जाना और काफ़ी मीन यू कैन से कि बीमार जैसा दिखना। नेक्स्ट इज़ आपका जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ कॉरोगेटेड। कॉरोगेटेड का मतलब होता है हियर रिंकल्ड एंड स्केयर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का ठंड वहाँ पे था, जो फ्रोज़न क्लॉथ्स थे उनकी बॉडी में ऐसे एकदम जम गया था, इसलिए उनको काट करके निकालना पड़ा उनकी बॉडी से। और सारा व्हीलर ने मतलब चेरी के बायोग्राफी में ये भी लिखा है कि चेरी के दांत जो है इतने मतलब पूरी तरीके से आई मीन वो वायलेंटली मतलब शैटर कर रहे थे कि लगा जैसे वो टूट के बाहर ही गिरने वाला। और विल्सन तो एक आंख से अंधा ही हो गया था। और चेरी जो है करीब करीब 30 इयर्स ओल्डर दिखने लगा था जब वो गया था उस वक्त, और अभी जब वो 6 वीक्स के बाद वापस आया तो उन दोनों आई मीन 6 वीक्स के टाइम में और आई मीन वापस आने के बाद और पहले के टाइम में जो है 30 इयर्स का एज डिफरेंस दिखने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रोजन कोल्ड, इतनी ठंड के कारण। So dear student, now we will continue this chapter in the next part of the video. So stay tuned with the channel, do like and subscribe the video and share it with your needy friends who want line by line explanation of this chapter. Thank you everyone. We will meet in the next part of the video. Thank you.